My dear friends, I welcome you to the 8th lecture of our first chemistry lesson of 11th standard, that is some basic concepts of chemistry. Again, what we introduced yesterday, and I told you the most significant concept, we are going to explore the concept today, right? We are going to go in further details of the concept, some part not mentioned in the CBSE syllabus, and that part is also covered in today's lecture. So before we see what all we are going to cover today, first let us go back and revise what we did yesterday. Quick revision out there. 1 mole atom or 1 mole molecule, what is it? So 1 mole atom यानी N0, N0 क्या है? Avogadro's number. N0 क्या है? Avogadro's number. N0 कल हमने प्रूव किया, इट इज 6.022 into 10 raised to 23. So 1 mole atom is equal to Avogadro's number, इतने atoms. So we saw 1 mole iron is 6.022 into 10 raised to 23 atoms of iron. 1 mole sodium is 6.022 into 10 raised to 23 atoms of sodium and so on. 1 mole molecule, एक मोल, कोई मॉलिक्यूल में जिक्र कर रहा था सिर्फ, एक मोल NaOH फॉर एग्जांपल, एक मोल NaOH में एवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एक मोल NaOH में एवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी 6.022 into 10 raised to 23. 1 mole NaOH will contribute 6.022 into 10 raised to 23 molecules of NaOH. So ये concept number A था. Second concept, 1 mole atom is equal to atomic mass in grams. 1 mole iron was 56 grams of iron. 1 mole sodium was 23 grams of sodium, right? Then 1 mole molecule is molecular mass इतने grams. 1 mole of NaOH, 1 mole of NaOH is 40 grams of NaOH. 1 mole of NaCl is 58.5 grams of NaCl. That's the revision segment, the revision we did yesterday. We are now introducing one more definition of 1 mole and then the convergence over here. This is not there in any of the text. This is a mole triangle, a very very unique concept we have introduced in IDEAL. तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. Let us see the third concept. 1 mole of any gas, hydrogen, oxygen, chlorine, argon, potassium नहीं, क्लोरीन, रुबिडियम भी नहीं, नाइट्रोजन, कोई भी गैस एट NTP. व्हाट इज NTP? NTP कुछ बुक्स में STP दिया है. इसका मतलब है कि प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 बार, pressure should be equal to 1 bar, which is 10 raised to the power 5 Newton per meter square. Temperature 273 Kelvin, 273.15, that is 0 degree Celsius. ऐसे सूरत हाल में 1 mole of any gas at NTP will occupy how much जगह, space, volume it occupies. So 1 mole of any gas at NTP occupies 22.4 liters और 22.4 डेसीमीटर क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम, और इसको सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट NTP. कोई भी गैस, आइडियल गैस हो, नॉन आइडियल गैस हो, इनर्ट गैस हो, नॉन इनर्ट गैस हो, NTP पे
यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको एनटीपी की जगह कुछ लोग एचटीपी भी लिखते हैं। इसको लिख लेना है आप सब लोगों को, ताकि ये जो टेक्स्ट के आगे का थोड़ा काम चल रहा है वो आपको दिक्कत ना हो। एंट्रेंस का रुख को देखते हुए ये सब पढ़ाया जा रहा है। सो एनटीपी या एसटीपी पे इट विल ऑक्यूपाई 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ये पूरा का पूरा दिस इज द मोल कंसेप्ट, दिस इज द मोल कंसेप्ट। ये जब तक समझ में नहीं आती है इस लेसन के, क्या केमिस्ट्री के भी आगे मत जाना। और बहुत सारे लोगों को जिनका मैथ्स वीक है ये कंसेप्ट तो समझ में आ जाती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कंसेप्ट तो समझ में आ जाती है, उसको अप्लाई कैसे करना है ये नहीं समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि आई हैव 4 grams of hydrogen is equal to how many moles? अब ये समझ में आ गया सब लोगों को, अरे भारी एकदम। इसका क्या है, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट is the skill which majority of the 10th standard students lack, because they have been learning it without understanding. But the ones who understand, see the way they use their brain. 4 grams of hydrogen is equal to how many mole? Okay, मैं अभी कैसे सोचता हूँ ये आपको पहले बताता हूँ। मुझे मास है ग्राम्स में दिया हुआ हाइड्रोजन का, उसको मोल में कन्वर्ट करना है। नो प्रॉब्लम, I write 1 mole of hydrogen, 1 mole of hydrogen is equal to 2 grams. कैसे आया 2 grams? ये क्या, 1 mole of molecule is equal to molecular mass in grams. 1 mole of H2 is equal to 2 grams. 2 कैसे आया, हाइड्रोजन एक है तो 1, 2 हाइड्रोजन यहाँ H2 तो 2 ग्राम। Therefore 4 grams, 4 gram corresponds to how many moles? Cross multiply 4 upon 2, that is 2 mole. The answer is 2 mole. The answer is 2 mole. So simple. मैंने क्या किया है, मास को कन्वर्ट कर दिया है मोल में, मैंने कन्वर्ट कर दिया है मास को मोल में, राइट। टेक अनदर एग्जांपल, सेकेंड वन। अब ये क्वेश्चन देखो, अरे भाई क्या है यहाँ पे, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकुलेट्स कितना मोल होता है। अभी पार्टिकुलेट में जाना है, पार्टिकुलेट में कहाँ से जाएंगे, अरे मुझे मालूम है, 1 मोल is equal to 6.022 into 10⁻23 particulate. So 12.044 into 10⁻25 particulates is equal to how many moles? Question mark. 12.044 into 10⁻25 upon 6.022 into 10⁻23, 2 into 10⁻2 moles, 2 into 10⁻2 moles. सिंपल। यस, जब दूसरा कोई सॉल्व करता है तो अक्सर चीज़ें बड़ी आसान लगती है। और एक उदाहरण से समझेंगे, कहाँ है लिखने के लिए जगह, यहाँ पे, ओके यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड एग्जाम्पल।
67.2 liter is equal to of a gas at NTP is equal to how many moles? 67.2 liters of a gas at NTP if taken is corresponding to how many moles? Okay, यहाँ 4 grams of hydrogen corresponding to how many mole? यहाँ पे 12.044 into 10 raised to 25 पार्टिकल यानी कितने मोल्स? कन्वर्जन इसका इस्तेमाल किया है. 67.2 liters of a gas at NTP equals how many moles? So I know that 22.4 liters correspond to 1 mole. So 67.2 liters corresponds to how many? 67.2 upon 22.4. The answer is 3 mole. The answer is 3 moles. अब मास इन ग्राम्स दिया है, मोल में कन्वर्ट कर सकते हो. पार्टिकुलेट्स दिया है, मोल में कन्वर्ट कर सकते हो. वॉल्यूम दिया है, मोल में कन्वर्ट कर सकते हो. मास, पार्टिकुलेट्स, वॉल्यूम तीनों को मोल में कन्वर्ट करने का सलीका हमने सीख लिया. इस सलीके को यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? देखो, इस सलीके को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है. समझ में आ रहा है क्या? देखो, मास ऑफ अ गैस इज टू बी कन्वर्टेड इन मोल्स. मास ऑफ अ गैस is to be converted in moles. Mass of a gas is to be converted in the number of moles divided by molar mass. 4 gram of hydrogen, ये भूल जाओ, divided by molar mass. Molar mass of hydrogen is 2. 4 divided by 2 is 2. 4 divided by 2 is 2. The answer is 2 moles. वापस एक बार देखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस दिया हुआ है 4 ग्राम्स. उसको अगर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोलार मास से डिवाइड कर दो. डिवाइड बाय मोलार मास. मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2. डिवाइड कर दिया, आंसर आया 2. सेकेंड कन्वर्जन देखो, इतने सारे पार्टिकुलेट्स को मोल में कन्वर्ट कर दिया. नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स को मोल में कन्वर्ट करना है. नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स को मोल में कन्वर्ट करना है. डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. ये भूल जाओ. 12.044 इंटू 10 रेज टू 25 पार्टिकुलेट्स, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो. 6.022, ये 2 आ जाएगा. 10 रेज टू 25 अपॉन 10 रेज टू 23, 10 रेज टू 2 आएगा. I'll get the answer as 2 into 10 raised to 2. 2 into 10 raised to 2 मोल. तो नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. आंसर आ गया. थर्ड, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है. थर्ड, वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है. वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन इन लीटर्स और उसको मोल में कन्वर्ट करना है. डिवाइड बाय 22.4. वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है. डिवाइड बाय 22.4. डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे. 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4. The answer is 3 moles. इसका मेरा आंसर 3 आया. इसका 2 into 10 raised to 2 आया. इसका 2 आया. अब मैंने कैलकुलेशन करके जो किया था ये कंसेप्ट वाला और ये ट्रायंगल इस्तेमाल करके जो किया, लेट अस सी वेदर इट इज द सेम और नॉट. 2 मोल टैली. 2 into 10 raised to 2 मोल. 2 into 10 raised to 2 मोल टैली. 3 मोल सेम है. सो ये क्योंकि ये इसी का एक्सटेंशन है. ओके, this is just for you to remember in a diagrammatic form, not given in any of the text. So make sure you understand it, and not only understand it but you also
लर्न इट बाय हार्ट, कभी भी कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो चलो और आगे का काम करते हैं। अभी मैंने क्या कराया आपको, तो सबको मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, मास ऑफ अ गैस को मोल में कन्वर्ट कर दिया, पार्टिकुलेट्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उल्टा करेंगे, लेट अस डू दैट, and then let us use triangle and get down to the answer, and let us check whether both the answers are same. क्वेश्चंस में कोई टेक्स्ट में से नहीं ले रहा हूं, मैं अपने अपने क्वेश्चंस बना रहा हूं। तो देखता है पहला क्वेश्चन क्या है। 3 मोल of oxygen is equal to how many grams of oxygen? ऑक्सीजन के 3 मोल मेरे पास है, ऑक्सीजन के 3 मोल मेरे पास है, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास है? सिंपल, ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन इज मास के टर्म्स में जाना है ना, यस ग्राम्स में चाहिए, मॉलिक्यूलर मास इतने ग्राम्स। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 2 हो गए तो 32। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 grams of oxygen. So 3 moles will be how much? Question mark 3 into 32, that is 96 grams. That is 96 grams. 96 grams. नहीं, इसको हम बाद में लिखते हैं ना, इसको अभी नहीं लिखेंगे। 96 ग्राम आंसर आ गया। कैसे आ गया वापस एक बार देखो, 1 मोल होता है 32 ग्राम्स, तो 3 मोल यानी कितना? द आंसर इज 96 ग्राम्स। सेकेंड टाइप, थ्री मोल gold will have how many particulates of gold? 3 मोल गोल्ड अगर मेरे पास है, 3 मोल, तो उस 3 मोल गोल्ड में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? कितने पार्टिकल्स यानी कितने गोल्ड के एटम्स रहेंगे? गोल्ड है तो एलिमेंट है तो एटम्स। सो 1 मोल अगर गोल्ड लिया मैंने, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकुलेट्स होते हैं। पार्टिकुलेट्स क्योंकि वो एटम्स मॉलिक्यूल लिखने से अच्छा है, सिंपल हो जाता है ये। और अगर मेरे पास 3 मोल्स है, तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 3 इंटू 6.022 into 10⁻23. So it is 3 into 6.022, 18.066, 18.066 into 10⁻23 particulates, into 10⁻23 particulates. सिंपल, 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकुलेट्स, तो 3 मोल में कितने पार्टिकुलेट्स? दैट्स इट। एंड वी हैव द लास्ट वन, देन द थर्ड वन, द थर्ड वन। टेन मोल of argon is equal to going to occupy how many dm cube at NTP? 10 मोल आर्गन अगर मैंने लिया, तो वो NTP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? सिंपल, 1 मोल लिया तो कितना ऑक्यूपाई करेगा बच्चों? 22.4 लीटर्स। तो अगर 10 मोल लिया
तो ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, क्वेश्चन मार्क, 224 लीटर्स it will occupy 224 liters. अब ये हमने ये कंसेप्ट से निकाला. Can we get it from this? Let us check. मोल को मास में कन्वर्ट करो, मोल को मास में कन्वर्ट करो. अरे है मेरे पास कन्वर्जन, देखो क्या है, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलार मास और एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास. ऑक्सीजन O2 मोलार मास 32, 32 इंटू 3 इज 96. आंसर आ गया 96, फर्स्ट आंसर. सेकेंड आंसर, 3 मोल गोल्ड अगर लिया तो 3 मोल गोल्ड में कितने पार्टिकल्स है गोल्ड के, तो पार्टिकल्स और मोल, पार्टिकल्स और मोल. ओके, मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल को पार्टिकल्स में. तो मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ मोल्स को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. सो 3 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. द आंसर इज 18.066 into 10 raised to the power 23 into 10 raised to the power 23. And the last one, 10 मोल ऑफ आर्गॉन एट एनटीपी, वॉल्यूम को मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मोल को वॉल्यूम में, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हुए ये एरो मल्टीप्लाई बाय 22.4, 10 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, 224 डेसीमीटर क्यूब, 224 डेसीमीटर क्यूब. अब क्रॉस चेक करते हैं, ये 96, 18.066 इंटू 10⁻23, 18.066 इंटू 10⁻23, 224, 224, परफेक्ट बैठ रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है. यानी अब ये ट्रायंगल का ही इस्तेमाल इसके बाद डायरेक्टली होगा, इसलिए आपको इसको भली भांति समझना है. क्या है, चलो पूरा रिवाइज कर लेते हैं. सब मोल कॉन्सेंट या मोल सेंट्रिक है, सब कुछ मोल में कन्वर्जन और मोल से कन्वर्जन ऐसे रखा है. यानी इसका इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन सॉरी, इसका इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं मैं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. आई एम नॉट कन्वर्टिंग दिस टू दिस डायरेक्टली, नहीं, ये बात नहीं रखा है मैंने. आई एम नॉट कन्वर्टिंग दिस टू दिस डायरेक्टली, नो, एवरीथिंग इज चैनलाइज थ्रू मोल, सब कुछ मोल के थ्रू जा रहा है. यानी क्या, देखो, मास ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में कन्वर्ट करना है, मास को मोल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय मोलार मास और एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास और एटॉमिक मास. ये कन्वर्जन देखो, ये पेयर, हर बार पेयर ही है ये. वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स. अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 22.4. नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 22.4. सी दिस कन्वर्जन, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ मोल्स को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे देखेंगे. अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढना है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. और ये जो कंसेप्ट है मोल की, ये जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आनी चाहिए. उदाहरण से समझाने की और अगर कोशिश की जाए तो है क्या, देखते हैं.
या और एक चीज़ एक सवाल के थ्रू मैं ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग वन स्मॉल टॉपिक थ्रू न्यूमेरिकल. पेज नंबर 1.10 सीबीएसई का ही काम चल रहा है, तो 1.10 पेज नंबर के ऊपर वो कंसेप्ट है. देखते हैं क्या कंसेप्ट है. क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं. अब इसको भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है. आज का टॉपिक इज़ द की टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग मेनी टॉपिक्स लेटर इन 11th स्टैंडर्ड. मैं आखिरी टॉपिक ले रहा हूँ आज का, न्यूमेरिकल नंबर 1.10 या क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.10. सवाल को देखिएगा. 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल इथेन है आपके पास. 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6, राइट. 3 मोल इथेन अगर मेरे पास है तो क्या क्या पूछ रहे वो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कितने मोल कार्बन एटम है. तो अब देखो कि 1 मोल इथेन अगर आपके पास है, 1 मोल इथेन अगर आपके पास है, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल में कितना इथेन है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स है, वो कार्बन पूछ रहे हैं. एक सेकंड. 3 मोल इथेन है, क्या क्या पूछा है उसको पहले लिख लेते. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर 2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड नंबर 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. अब देखो मैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से शुरू कर रहा हूँ. हाउ टू कन्वर्ट मोल्स टू मॉलिक्यूल्स. अब देखो तो नंबर ऑफ मोल्स को मुझे कन्वर्ट करना है पार्टिकुलेट्स में, मॉलिक्यूल्स में. सो नंबर ऑफ मोल्स को पार्टिकुलेट्स में कन्वर्ट करना है, इधर से इधर जाना है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. सो दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस विल बी 3 मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर 3 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to 23, 18.066 इंटू 10 raised to 23. इतने सारे क्या है, क्या है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स है. किसके, C2H6 के. इतने सारे मॉलिक्यूल्स है किसके, C2H6 के. अब वो क्या पूछ रहे, C2H6 ऐसा मॉलिक्यूल होता है, आपने पढ़ा होगा आपके स्कूल डेज में, 10th में है, हमने भी किया है इन केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड. एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6, इसमें कितने कार्बन के एटम्स है, 2 एटम्स ऑफ कार्बन. ऑल ऑफ यू एग्री. एक मॉलिक्यूल अगर मैंने लिया, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है इथेन का, तो उसमें 2 कार्बन एटम्स है. तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में इतने, तो 18.066 इंटू 10 raised to 23 में कितने, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 18.066 इंटू 10 raised to 23 इंटू 2, 18.066 इंटू 2. The answer is 36.132 इंटू 10 raised to 23. कार्बन एटम्स कितने आएंगे, 36.132 इंटू 10 raised to 23 एटम्स. हाइड्रोजन का कैसे करेंगे, सेम वैसा. क्या करेंगे देखो तो, एक मॉलिक्यूल, ये समझो ठीक से, एक मॉलिक्यूल अगर मैंने लिया किसका, ऑफ C2H6, उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. एक C2H6 के मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन के एटम्स है. मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है C2H6 के, 18.066
into 10 raised to 23 में कितने, the question mark will be 6 into 18.066 into 10 raised to 23, 18 into 6 into 18.066, this is 108.396 into 10 raised to 23 atoms. So that is the way I have solved that question. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वो भी ढूंढ सकते हैं. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपर्ली. 3 मोल C2H6 यानी कितने मॉलिक्यूल्स, तो मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो इतने मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल इथेन का लेते हैं तो उसमें 2 कार्बन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम, सिंपल. एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन लेते हैं तो 6 हाइड्रोजन एटम्स, तो अगर इतने हैं तो कितने, यू गेट द आंसर. सो दैट्स इट गाइस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. रुक जाएंगे, आज का काम इधर ही खत्म करते हैं. कल देखते हैं, शायद आगे का टॉपिक लेंगे, नहीं तो we'll have some more questions on this, right? So thank you so much and have a great day.